An application under Order 7 Rule 11 CPC filed by the defendant and brief facts of this application are as under case. The relief sought to be plaintiff only obtained by way of the complaint or application filed before the magistrate under the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, and therefore the suit of plaintiff is barred by law and plaint should be rejected. These are the averments of the application of the defendants. मोनू खंगारोत माइक ऑफ कर दे अपना. Application has been filed by the defendant under Order 7 Rule 11 CPC that the relief which is sought by the plaintiff in the suit, it is only conferred by, granted by the magistrate when the application has been filed under Section 12 of the DV Act, and this relief cannot be granted in civil suit, and this suit is barred by law within the meaning of the Order 7 Rule 11 Clause D of the Civil Procedure Code. Plaintiff submitted the reply and opposed the application while contending that this suit is maintainable as per Section 26 of the Domestic Violence Act and prayed for the dismiss the application. Plaintiff filed the reply of this application and contend that the suit is not barred by the DV Act, expressly provided under Section 26 of the DV Act that the relief conferred under Section 18, 19, 20, 21, 22 of may be granted by the civil courts, family court, criminal court, if any legal proceeding has been initiated before the concerned competent court. Decide the application upon above mentioned facts, above mentioned averments. हिंदी में देखेंगे आप, प्रतिवादी की तरफ से एक प्रार्थना पत्र है वो पेश किया गया है आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अंतर्गत, और उसके संक्षिप्त में तथ्य क्या थे. वादिया ने अपने वाद पत्र में जो अनुतोष चाहा है वो केवल घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन पेश करके ही प्राप्त किया जा सकता है. इसलिए ये जो वाद पेश किया गया है घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अनुतोष के संदर्भ में, ये वाद विधि द्वारा वर्जित है ऑर्डर 7 रूल 11 क्लॉज डी के अंतर्गत. इसलिए जो है वो वादी का वाद पत्र जो है वो नामंजूर किया जाए, रिजेक्ट किया जाए. ये जो है इन कथनों के साथ एक प्रार्थना पत्र प्रतिवादी ने आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत पेश किया. वादी ने इस प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया और क्या क्या कथन किए प्रार्थना पत्र के अंदर. धारा 26 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार जो अनुतोष धारा 18 ही नहीं 18, 19, 20, 21, 22 जो है उनके अंतर्गत है वो प्राप्त किया जा सकता है, और वो किसी अन्य सिविल, पारिवारिक और दांडिक न्यायालय से भी प्राप्त किया जा सकता है. इसलिए वादी का दावा या वादी का वाद जो है वो विधि द्वारा वर्जित नहीं है, अतः प्रतिवादी का जो प्रार्थना पत्र है वो खारिज किया जाए. वादी का कहना यह है कि वादी का वाद एक विधिक कार्रवाई शब्दावली जो धारा 26 में यूज दी गई है लीगल प्रोसीडिंग, उसमें सिविल वाद है वो कवर होता है, और सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष वाद है वो पोषणीय है, मेंटेनेबल है, उसको वर्जित है वो नहीं कर रखा है. इसलिए प्रतिवादी का ये प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का है, ये डिसमिस किया जाए, ये है वो खारिज किया जाए. उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर इस प्रार्थना पत्र को विनिश्चित करिए. इस प्रार्थना पत्र में ऑर्डर या आदेश है वो लिखिए. इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज प्रिजाइडिंग ऑफिसर पीक डेजिग्नेशन RJS अंडर सिविल ओरिजिनल सूट नंबर सो एंड सो ऑब्लिक 2019 CNR then A versus B the name of the parties, and application under Order 7 Rule 11 Civil Procedure Code. Then the order, this side the date, month or year. I, P is the symbolic name of the presiding officer. RJS is designation. Shall dispose of this application in the following manner. Advocate M for plaintiff and advocate N for defendant is present. Then second, an application under Order 7 Rule
11 CPC filed by the defendant, and brief facts of this application are as under the case. The right sought to be plaintiff only obtained by way of the complaint or application filed before the magistrate under the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. Therefore, the suit of the plaintiff is barred by law and the plaint should be rejected. Plaintiff submitted reply and opposed the application while contending that this suit is maintainable as per section 26 of the DV Act and prayed for the dismiss the said application of the defendant. Arguments were heard from both sides, and both the parties repeated the averments of the application and reply, going through the provisions under section 26 of the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 as followed. Section 26 provides that relief in other suits and legal proceedings. Subsection first, any relief available under section 18, 19, 20, 21 and 22 may also be sought in any legal proceeding before a civil court, family court or criminal court affecting the aggrieved person and the respondent, whether such proceeding was initiated before or after the commencement of this act. This subsection first of section 26 supported the arguments of plaintiff. By the said provision of law, is clear that the said act gives the right to file suit in civil court to aggrieved person as defined under the Protection of Women from the Domestic Violence Act 2005, and therefore this suit is not barred by law. So, application of the defendant under Order 7 Rule 11 CPC is dismissed. And after then, the signature of presiding officer and seal of the court. Then the order have been pronounced in open court on today, date so and so, and again the signature of presiding officer and seal of the court with date. हिंदी में देखेंगे आप, चूंकि इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं था कि ये जो सूट है इस सिविल कोर्ट में संस्थित किया गया, जिला न्यायालय में संस्थित किया गया, एडीजे कोर्ट में संस्थित किया गया या वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के न्यायालय में है वो संस्थित किया गया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम से क्लियर है वो नहीं है। तो इनिशियली हम ऐसा मान सकते हैं फिर कि जो इनिशियल कोर्ट है सिविल जज का कोर्ट उसमें ही संस्थित है वो हुआ है। न्यायालय सिविल न्यायाधीश, जगह की नाम को आप ब्लैंक है वो छोड़ सकते हैं। पीठासीन अधिकारी श्री, इसमें जो भी अपन ने नाम है वो इंग्लिश में तो हमने पी लिया था, हिंदी में क्या एक्स है, क्या एक्स या पी, जो कुछ भी आप है वो सिंबॉलिक नाम दे। पदनाम आरजेएस, अंतर्गत दीवानी मूलवाद संख्या और ईयर चूंकि इसमें प्रॉब्लम से क्लियर था क्या नहीं, तो ईयर भी जो है जब प्रॉब्लम से है वो क्लियर नहीं है तो फिर हम 2024 भी लिख सकते हैं, जैसे ईयर में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो। देन पार्टीज़ के पर्टिकुलर आएंगे और बीच में बनाम आएगा, ए पुत्र श्री आयु निवासी, और बी में भी सेम प्रोसीजर है वो फॉलो होगा। उसके बाद ऐसा लिखा भी जा सकता है, प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 CPC, ऐसा हेड भी है वो आ सकता है, टाइटल भी है वो आ सकता है। देन आदेश, और ये जो दिनांक है ये सिर्फ राइट साइड में जो है वो मेंशन होगी, डे मंथ और ईयर जो है वो मेंशन किया जाएगा। और उसके बाद जो है एक स्टेटमेंट आएगा जनरल पीठासीन अधिकारी का, मैं एक्स जो हमने प्रतीकात्मक नाम दिया है कंसर्न सिविल न्यायाधीश का, मैं एक्स आरजेएस उसका डेजिग्नेशन है, राजस्थान न्यायिक सेवा, उपयुक्त वर्णित प्रार्थना पत्र को निम्न प्रकार से निस्तारित करता हूँ या वो इसका निपटारा करता हूँ, डिसाइड करता हूँ, विनिश्चित करता हूँ। वादी अ के अधिवक्ता श्री, जो भी सिंबॉलिक नाम आपने दिया है वो मेंशन कर सकते हैं आप, और प्रतिवादी बी के अधिवक्ता श्री सो एंड सो जो है वो उपस्थित हुए। दूसरा पैरा, प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त कथन क्या थे, संक्षिप्त तथ्य क्या थे, ये है वो मेंशन हो गए इसमें। प्रतिवादी के ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 CPC जो है उस पर सुना गया, और जिसके संक्षिप्त जो है वो मैं कथन इस प्रकार है कि वादिया ने अपने वाद पत्र में जो अनुतोष चाहा है वो केवल घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत
संबंधित मैजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन पेश करके ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए ये वाद जो है वो विधि द्वारा वर्जित होने से ये वाद पत्र है वो क्या किया जाए, नामंजूर किया जाए या खारिज है वो किया जाए। थर्ड जो पैरा आएगा आपका ऑर्डर के अंदर, उसमें रिप्लाई जो था, जवाब था वादी का, उसके कथन है वो मेंशन होंगे। उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर वादी की ओर से कथन किया गया कि धारा 26 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार जो अनुतोष उक्त अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है। केवल 18 ही नहीं, 18, 19, 20, 21, 22 जो है, इनमें से किसी में भी वो प्राप्त किया जा सकता है। वह किसी अन्य सिविल, पारिवारिक या आपराधिक न्यायालय से भी जो है, आपराधिक या दंड न्यायालय से भी प्राप्त किया जा सकता है। अतः वादी का वाद जो है वो विधि द्वारा वर्जित है, वो नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र जो प्रतिवादी का है वो खारिज किया जाए। फोर्थ जो पैरा आएगा आपका, वो बहस, आर्ग्यूमेंट जो है वो मेंशन होंगे इसमें। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। उभय पक्ष मीन्स दोनों पक्षों की बहस सुनी गई, जिसमें उभय पक्ष के अधिवक्ताओं ने प्रार्थना पत्र और जवाब प्रार्थना पत्र था उसके तथ्यों को दोहराया आर्ग्यूमेंट के टाइम। इस संबंध में धारा 26 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का अवलोकन किया गया, जो निम्न अनुसार है। 26 में क्या दे रखा है घरेलू हिंसा अधिनियम के अंदर, अन्य वादों और विधिक कार्रवाइयों में अनुतोष। उपधारा 1 रेलेवेंट है अपने इस वो टॉपिक से, इस प्रॉब्लम से, इस क्वेश्चन से। धारा 18, 19, 20, 21, 22 के अधीन उपलब्ध कोई अनुतोष किसी सिविल न्यायालय, किसी कुटुंब न्यायालय, किसी दंड न्यायालय के समक्ष किसी व्यतीत व्यक्ति और प्रत्यर्थी को प्रभावित करने वाली विधिक कार्रवाई में भी, चाहे ऐसी कार्रवाई इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या इसके पश्चात है वो आरंभ की गई है, ऐसा अनुतोष है वो मांगा जा सकता है उस विधिक कार्रवाई में, और कंसर्न कोर्ट ऐसा अनुतोष दे भी सकते हैं। तो इसलिए सिविल वाद भी जो है इस विधिक कार्रवाई शब्दावली में कवर होता है, यदि सिविल न्यायालय के समक्ष है वो संस्थित किया जाए। और उसमें डीवी एक्ट के अंतर्गत स्पेसिफिक ये जो 5 धाराएं दे रखी है, इनमें दिए गए जो अनुतोष है, चाहे वो प्रोटेक्शन ऑर्डर है, चाहे रेजिडेंस ऑर्डर है, मॉनिटरी रिलीफ है, कस्टडी ऑर्डर है और कॉम्पनसेशन ऑर्डर है, इनमें से कोई भी अनुतोष, संरक्षण आदेश, निवास आदेश, मौद्रिक अनुतोष, अभिरक्षा आदेश और प्रतिकर आदेश, इनमें से कोई भी अनुतोष जो है वो अन्य विधिक कार्रवाई जो है, जो सिविल वाद भी हो सकती है और अन्यथा भी है वो हो सकती है, उस सिविल कार्रवाई के अंदर, उस दंडिक कार्रवाई के अंदर, पारिवारिक न्यायालय के समक्ष कोई कार्रवाई, उस कार्रवाई के अंदर भी ये रिलीफ मांगे जा सकते हैं और कंसर्न कोर्ट ऐसा रिलीफ दे सकते हैं। तो ये जो धारा 26 की उपधारा जो 1 है, ये वादिया के द्वारा जो अपनी रिप्लाई फाइल की गई थी और आर्ग्यूमेंट किए गए थे उसको सपोर्ट है वो करती है। देन उपयुक्त विधिक प्रावधान से यह स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम वादी को सिविल वाद संस्थित करने का अधिकार भी देता है। अतः हस्तगत वाद पत्र को विधि द्वारा वर्जित नहीं माना जा सकता, या हस्तगत वाद को विधि द्वारा वर्जित है वो नहीं माना जा सकता। अतः वादी का दावा जो है वो विधि द्वारा वर्जित है वो नहीं है। अतः की जगह यहाँ इसलिए भी यूज कर सकते हैं आप, इसलिए जो है वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित नहीं है। अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 CPC है वो क्या खारिज किया जाता है। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा आएगी और इसके बाद जो है वो लिखा जाएगा, क्या ये लिखा जाएगा, यह आदेश इस न्यायालय द्वारा आज दिनांक को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनवाया गया, या डायरेक्ट सुनवाया गया, ये भी लिख सकते हैं, लिखवाया जाकर सुनाया गया। और इसके बाद दोबारा जो है पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और कोर्ट की मुद्रा लगेगी। तो इस तरीके से ऑर्डर 7 रूल 11 की ये जो एप्लीकेशन थी, इसमें अपन ऑर्डर है वो लिख सकते हैं। तो हमने नोट किया कि फॉर्मेट जो है वो ऑर्डर राइटिंग का, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट हो गई।
फॉर्मेट में सबसे पहले जो है वो कोर्ट का नाम जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया, देन पीठासीन अधिकारी का नाम और उसका डेजिग्नेशन, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड, किस सिविल वाद के अंदर ये एप्लीकेशन आई है, उस सिविल मूल वाद के संख्या और ईयर क्या है, और सीएनआर नंबर जो है वो भी है वो मेंशन होंगे। उसके बाद जो प्रकरण का उन्वान जो है वो मेंशन होगा, जो वादी है इस वाद के अंदर, उस वादी का नाम, उसकी आयु, उसका पिता का नाम, उसका निवास, देन बनाम, उसके बाद प्रतिवादी के पर्टिकुलर्स आएंगे। फिर प्रार्थना पत्र कौन से प्रोविजन के अंतर्गत है, ये भी है वो हमने इंग्लिश में शायद लिखा था ऐसा, प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता। सिविल प्रक्रिया संहिता, तो इस तरीके से जो है, और ये अंडरलाइन भी होगा। इसके बाद आदेश ये सेंटर में लिखा जाएगा, इस तरफ डेट आएगी, ये डेट इसमें थोड़ी ऊपर हो गई है, ये नीचे आएगी, जिस लाइन में ऑर्डर आ रहा है उससे जस्ट नीचे वाली लाइन जो होगी उसमें जो है वो डेट है वो मेंशन होगी। उसके बाद ये जनरल स्टेटमेंट हमने पढ़ा कि मैं इसमें जो नाम है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, उसका डेजिग्नेशन, और इस प्रार्थना पत्र को जो नीचे दिए गए पैराज है उनके अनुसार जो है वो उसका निस्तारण या निपटारा है वो कर रहा हूँ। उस सबसे पहले प्रेजेंस मेंशन होगी, वादी की तरफ से कौन है वो उपस्थित हुए, प्रतिवादी की तरफ से कौन उपस्थित हुए। सेकेंड पैरा में जो प्रार्थना पत्र है उसके संक्षिप्त कथन क्या ये आएंगे। थर्ड पैरा में जवाब जो है उसके संक्षिप्त कथन क्या ये आएंगे या तथ्य क्या ये। अगले में आर्ग्यूमेंट्स, और फिर कोर्ट का व्यू क्या है, कोर्ट किसकी बात से सहमत है, लॉ के प्रोविज़न का ऑब्जर्वेशन वगैरह है वो करने के बाद, या कोई रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट वगैरह की उसकी ऑब्जर्वेशन करने के बाद, और अल्टीमेटली जो है एप्लीकेशन को अलाउ या डिसअलाउ कोर्ट का वो कर रहा है ये मेंशन होगा। फिर सिग्नेचर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के और कोर्ट की वो सील आएगी। फिर एक ये जो है एक लाइन में जो लिखा जाएगा कि ये ऑर्डर जो है आज दिनांक इतने इतने को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर है वो सुनाया गया, और दोबारा पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्राई। ये एक फॉर्मेट है वो ऑर्डर है वो लिखने का, इसको आपको है वो फॉलो करना है। नेक्स्ट, हाँ जी, कल हो गया डिस्कस, अब क्या पूछना है? हाँ जी, धारा 26 में प्रोविजन नहीं है क्या? क्यों, स्पेशल लॉ का प्रोविजन उसी लॉ का नहीं है 26? तो आपने इंटरप्रिटेशन तो पढ़ रखा होगा ना, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में, कि आपको जब भी किसी लॉ का इंटरप्रिटेशन करना है तो पूरे प्रोविजन उनको एक साथ देखते हुए है वो करना है। क्या कहते हैं उसको? विसरी बस, कौन सा है वो? एक्स विसरी बस एक्टस, एक्स विसरी बस एक्टस। भाई सामान्यतः तो उसको मजिस्ट्रेट के न्यायालय में ही जाना है, बट वो सिविल सूट में भी ये रिलीफ मांग सकता है, दूसरे किसी रिलीफ के साथ भी, वो किसी क्रिमिनल कार्रवाई में भी ये रिलीफ है वो मांग सकता है। वो फैमिली कोर्ट में कोई डिवोर्स की प्रोसीडिंग है, किसी है वो वॉइड या वॉइडेबल मैरिज को डिक्लेरेशन की कोई है वो एप्लीकेशन है, या अदरवाइज किसी प्रकार का रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट आदि की एप्लीकेशन है, तो उस केस में भी ये रिलीफ मांगे जा सकते हैं उनके साथ। जब धारा 26 एक्सप्रेस रूप से कह रहे हैं पार्लियामेंट ने पारित की है हिंदुस्तान के, उसको हम चैलेंज थोड़ी कर सकते हैं। कंफ्यूजन क्यों था? कोर्ट खुद लिख रहा है कि साहब धारा 26 में प्रावधान है, तो सेक्शन 26 में एक्सप्रेस प्रोविजन दे रखा है, फिर भी कंफ्यूजन है। फिर तो धारा 12 पे भी कंफ्यूजन होगा कि मजिस्ट्रेट के सामने भी एप्लीकेशन जाएगी या नहीं। ये भी कंफ्यूजन है कि एग्रीड पर्सन महिला होगी कि नहीं, पुरुष भी हो सकता है। फिर हर बात पे कंफ्यूजन आएगा। जब प्रोविजन दे रखा है धारा 26 में कि ये रिलीफ मांगे जा सकते हैं, इसका मतलब हो सकता है ऐसा। सिविल सूट में भी ये रिलीफ जो है अदर किसी रिलीफ के साथ, आप कोई पोजीशन का रिलीफ मांग रहे हैं
इंजेक्शन का रिलीफ मांग रहे हैं आप, कोई ऑनरशिप डिक्लेरेशन के लिए गए हैं, उसके साथ ये रिलीफ आप क्लेम कर सकते हैं। मेंटेनेंस के लिए भी गए हैं आप, इवन जो है भरण पोषण के लिए, उसके साथ भी ये रिलीफ है वो क्लेम किए जा सकते हैं। केवल इसके लिए तो डीबी एक्ट में, बट एडिशन में क्यों? हाँ हाँ, अन्य जो वो सबसेक्शन 2 आप पढ़ोगे इसी है वो 26 का, तो उसमें दे रखा है कि अदर जो रिलीफ है उनके एडिशन में जो है और उनके साथ साथ ये रिलीफ है वो क्लेम किया जा सकता है। यस, नेक्स्ट एक एप्लीकेशन और जो है, जो ऑर्डर 6 रूल 17 सीपीसी की एप्लीकेशन थी, कल की क्लास में पढ़ ली थी हमने, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, केवल फॉर्मेट देखने की कोशिश की। क्या हुआ पलवे? जिस किसी का भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स का माइक ऑन है बंद कर दें, अपना अपना माइक जो है उस पर ध्यान रखें, क्लास डिस्टर्ब हो रही है आप लोगों के कारण, और कहने से नहीं करोगे तो फिर रिमूव कर दिए जाओगे। यस, इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक्ट्स डेजिग्नेशन आरजेस अंडर सिविल ओरिजिनल सूट नंबर सो एंड सो CNR then applicant oblique plaintiff A son of A is resident of versus non-applicant oblique defendant B son of A and resident of application under order 6 rule 17 CPC order I X RJS, X is symbolic name, RJS is designation, shall dispose of the aforesaid application in following manner. Learned advocate M for plaintiff and learned advocate N for defendant present an application under order 6 rule 17 CPC filed by the plaintiff for the amendment of the plaint, and the brief facts of this application are as under case that the plaintiff file a suit against the defendant for recovery of possession, damages and mean profit in the year of 2013. In the year of 2013, defendant filed a written statement in the year 2015 denying the title of the plaintiff. Hence, the plaintiff filed the present application to amend the plaint, claiming the relief of the declaration of title over the suit property as well. Plaintiff read to allow the application and pass the order for amendment of plaint. An amendment seeking for the declaration is quite essential for complete and effective adjudication of the dispute between the parties. Next para is concerned to the reply. Defendant filed reply and opposed on the ground that the declaration sought by the plaintiff is barred by limitation as the application was filed after the 3 years. Defendant pleaded that under entry number 58 of the Schedule of Limitation Act, the declaration sought by the plaintiff in this case ought to have been within 3 years when the right to sue first accrued and prayed for the dismiss the application. Next para is concerned to the arguments. Argument were heard from both the side, and both the parties repeated the averments of the application and the reply, and the plaintiff averred that the relief claimed by him does not fall under the entry number 58 of the Schedule of the Limitation Act, but fall under the entry number 64 or 65 of the said Schedule of the Limitation Act, and which provides for the limitation of 12 years. Limitation of 12 years. Therefore, according to them, the prayer of the declaration of title is not barred by the limitation, and authoritative judgment of the Honorable Supreme Court produced by the plaintiff Sampath Kumar versus Ayya Kannu and others 2003. Next para. In present case, the suit was filed in the year of 2013. Admittedly, written statement was filed by the defendant on 16th June 2015 denying the title of the plaintiff
Then the present application was filed by the plaintiff to amend the plaint by seeking the relief of declaration as well. After perusal of the application and the reply and authoritative judgment of the Honorable Supreme Court, in the opinion of the court, when there is no change of the cause of action and no introduction of the new case, the court ought to have allowed the application for amendment, and also that the parties to put forth their contentions with the reference to the bar of the limitation also during the course of trial, and therefore the proposed amendment is necessary for the determining the real controversy of ownership between the parties. And last para, hence the application under order 6 rule 17 CPC is allowed, and plaintiff is directed to incorporate the amendment in the plaint, the amended plaint, and the defendant make the consequential amendment in the written statement. Signature of the presiding officer and seal of the court, and this order is pronounced today so and so in open court, and then signature of the presiding officer and seal of the court again. Court perusal the entry number 64 and 65 of the Schedule of Limitation Act. Also observe the authoritative precedent of the Honorable Supreme Court Sampath Kumar versus Ayya Kannu and others 2003 Supreme Court. Ultimately, court held that there is no change in cause of action, no introduction of the new case, and this amendment is necessary for determination of the real controversy between the parties. Ultimately, court allowed this application and passed the order that the plaintiff amend the plaint and produce before the court that amended plaint, and also directed to the defendant to make the consequential amendment in the WS. हिंदी में आप देखेंगे आदेश 6 नियम 17 प्रैक्टिकल प्रावधान है, अभिवचन में संशोधन, अमेंडमेंट इन प्लीडिंग, प्लेंटिफ का भी राइट है, डिफेंडेंट का भी राइट है। 6-17 का प्रार्थना पत्र वादी भी ला सकता है अपने प्लेंट में अमेंडमेंट के लिए, और प्रतिवादी भी ला सकता है अपने WS में है वो अमेंडमेंट के लिए। न्यायालय सिविल न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी एक्स सिंबॉलिक नेम और डेजिग्नेशन इज RJS। देन अंतर्गत सिविल मूलवाद संख्या 2013 CNR प्रार्थी ऑब्लिक वादी ए पुत्र सो एंड सो, आयु सो एंड सो एंड निवासी सो एंड सो बनाम अप्रार्थी ऑब्लिक प्रतिवादी, बी पुत्र सो एंड सो, आयु सो एंड सो एंड निवासी सो एंड सो। प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता। देन आदेश और इस तरफ जो है वो दिनांक में एक्स सिंबॉलिक नेम है कंसर्न पीठासीन अधिकारी का और RJS डेजिग्नेशन है। सिविल जज और सीनियर सिविल जज हो उसमें हम RJS है वो लिख सकते हैं, और जो है वो जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश है तो उसमें हम डिस्ट्रिक्ट जज कैडर जो है वो डेजिग्नेशन है वो लिखते हैं। उपयुक्त प्रार्थना पत्र को निम्नानुसार निस्तारण है वो करता हूँ। अधिवक्ता वादी M उपस्थित और अधिवक्ता प्रतिवादी N उपस्थित, और वादी की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 वाद पत्र को संशोधित करने हेतु पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद प्रतिवादी के विरुद्ध कब्जे की प्राप्ति के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए और मध्यवर्ती लाभ के लिए वर्ष 2013 में पेश किया था। वादी ने एक वाद प्रतिवादी के विरुद्ध 2013 में पेश किया और उसमें क्या क्या रिलीफ क्लेम किया था? कब्जा प्राप्ति के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए और मध्यवर्ती लाभ जो है इसको प्राप्त करने के लिए। प्रतिवादी ने वर्ष 2015 में अपना बचाव का लिखित कथन पेश किया उस वाद में। उक्त लिखित कथन में वादी के स्वत्व या हक से इनकार किया गया, इसलिए वादी ने हस्तगत प्रार्थना पत्र वाद पत्र को संशोधित करने के लिए पेश किया और वादगत संपत्ति पर स्वतः या हक की घोषणा के अनुतो उसका दावा किया। प्रतिवादी ने उस WS के अंदर जो है ये कहा कि साहब ये प्लेंटिफ तो इस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का ओनर ही नहीं है, ये स्वामित्व है वो नहीं रखता है, इसका कोई टाइटल या राइट या इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए इसके पास जो है वो ये सूट पेश करने का लोकस स्टैंडाई है वो नहीं है, उसके पास अधिकार ही नहीं है इस बात को पेश करने का। तो जब इस तरीके से कोई न्यू फैक्ट है वो रेज किया गया है WS के अंदर जो प्लेंट में नहीं था,
उसकी रिप्लाई फाइल करना जो है वो वादी के लिए है वो आवश्यक है। उसके कॉन्सिक्वेंस में वो वाद पत्र में संशोधन भी कर सकता है, सब्सिक्वेंट प्लीडिंग भी पेश कर सकता है। पश्चातवर्ती अभिवचन ऑर्डर 8 रूल 9 में वो ला सकता था। और दूसरा उसके पास क्या ऑप्शन था, अपने प्लेंट को है वो अमेंड किया जाना। तो वाद पत्र में संशोधन, क्योंकि जब स्वामित्व से है वो इनकार कर दिया तो स्वामित्व की घोषणा का जो रिलीफ है ये क्लेम करना मैंडेटरी हो गया वादी के लिए। तो इसलिए वो वादी जो है उस WS में जो न्यू बात है वो रेज की गई, न्यू पॉइंट जो रेज किया गया, उसके ऑनरशिप और टाइटल से जो रिफ्यूज किया गया या डिनाई किया गया, इस कारण से ये कॉन्सिक्वेंशनल जो है वो अमेंडमेंट है वो आवश्यक हो गया। और वो प्रार्थना पत्र लेके आया कि मुझे अपने वाद पत्र में संशोधन की अनुमति दी जाए। मैं ये एक पैरा जो है पहले से प्रेयर का पैरा जहां दे रखा उसमें ऐड करूंगा कि चूंकि मैं इस प्रॉपर्टी का जो है वो ऑनर हूं, मुझे ऑनर है वो घोषित किया जाए, स्वामी है वो घोषित किया जाए। इस बात को मैं अपने वाद पत्र में ऐड करना चाहता हूं। यह अभिकथन है वो किया गया कि चाही गई घोषणा का संशोधन पक्षकारों के बीच विवाद को पूर्ण और प्रभावी न्याय निर्णय के लिए आवश्यक है और प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वाद पत्र संशोधित करने की प्रार्थना की। यह भी कहा गया कि ये जो है जो संशोधन के माध्यम से जो कुछ भी है वो रिलीफ मांगा जा रहा है या ऐड किया जा रहा है, ये ऐड होना जो है वो जरूरी है, अन्यथा पक्षकारों के बीच में पूर्ण और प्रभावी रूप से विवाद या विवादग्रस्त बात का निर्णय नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट जो पैरा है, प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र का इस आधार पर विरोध किया कि वादी द्वारा चाही गई घोषणा परिसीमा से वर्जित है। और प्रतिवादी ने अभिकथन किया कि हस्तगत वाद में वादी द्वारा चाही गई घोषणा का दावा प्रथम बार वाद लाने का अधिकार उद्भूत होने से परिसीमा अधिनियम की अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 58 के अनुसार 3 वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए था, जबकि वादी ने लिखित कथन में स्वतः से इनकार किए जाने से 3 वर्ष के बाद हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया है और जिसे खारिज किए जाने की प्रार्थना की। प्रतिवादी ये ऑब्जेक्शन लेके आया कि ये जो रिलीफ बाय वे ऑफ अमेंडमेंट इन प्लीडिंग, अभिवचन में संशोधन के माध्यम से जिस अनुतोष को मांग रहा है, डिक्लेरेशन ऑफ ओनरशिप, ये रिलीफ बार्ड बाय लिमिटेशन है और चूंकि ये परिसीमा विधि से वर्जित है इसलिए अमेंडमेंट के माध्यम से भी नहीं मांगी जा सकती। ये प्रतिवादी ने कहा कि साहब ये जो रिलीफ है ओनरशिप की डिक्लेरेशन का, ये परिसीमा अधिनियम की अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 58 में कवर होता है और वहां 3 साल का लिमिटेशन दे रखा है। और 3 साल कहां से? कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने से। फर्स्ट टाइम कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने से 3 साल लिमिटेशन है। चूंकि मैंने 2015 में जब WS है वो फाइल किया था, जिस दिन WS की कॉपी इसको रिसीव हुई उसी दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया था इसके पक्ष में, और वहां से वो 3 साल इसके पास लिमिटेशन था। और उस 3 साल की समाप्ति के बाद इसने प्रार्थना पत्र 2018 के किसी महीने में, जून महीने के बाद है वो पेश किया है वो 15 जून 16 जून जो कुछ भी था, तो 16 जून 2018 के बाद प्रार्थना पत्र पेश किया। इसलिए जो है ये परिसीमा विधि से वर्जित अनुतोष है और ये संशोधन के माध्यम से है वो नहीं ऐड है वो किया जा सकता। ये जो प्रार्थना पत्र है 6-17 का वादी का, ये खारिज किया जाए। ये अल्टीमेटली प्रतिवादी ने कोर्ट से प्रेयर या प्रार्थना की। उभय पक्षों की बहस सुनी गई, जिसमें उभय पक्षों ने प्रार्थना पत्र और जवाब के अभिकथनों को दोहराया। जो बातें उन्होंने एप्लीकेशन में और रिप्लाई में कही थी, उन्हीं बातों को आर्ग्यूमेंट के टाइम भी है वो रिपीट किया गया। वादी ने तर्क दिया कि उसके द्वारा दावाकृत अनुतोष परिसीमा अधिनियम की अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 58 में नहीं आता है, परंतु उक्त अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 64 और 65 के अंतर्गत है वो आता है। ऑनरशिप यहाँ जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, स्थावर संपत्ति के स्वामित्व की घोषणा का जो है वो अनुतोष है, जो वहाँ 58 में जनरल उस एंट्री में न आकर स्पेसिफिक एंट्री में कवर होगा 64 और 65 में, जिसमें 12 वर्ष का परिसीमा काल का प्रावधान है। वहाँ लिमिटेशन पीरियड है वो क्या है? 12 ईयर है। उन प्रविष्टियों के अनुसार वादी द्वारा दावाकृत अनुतोष का अनुतोष परिसीमा विधि से वर्जित नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्राधिकार पूर्व निर्णय वादी द्वारा पेश किया गया, जो संपत कुमार बनाम अय्या कन्नू एवं अन्य 2003 सुप्रीम कोर्ट का है वो जजमेंट था। और इस जजमेंट में भी यही बात कही थी, जहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऑनरशिप का है वो सूट हो तो वह एंट्री नंबर 58 में कवर न होकर कहाँ कवर होगा? 64 और 65 में कवर होगा। नेक्स्ट पैरा, हस्तगत मामले में चूंकि वाद वर्ष 2013 में संस्थित किया गया, स्वीकार्य रूप से लिखित कथन 16 जून 2015 को पेश किया गया, जिसमें विवादग्रस्त संपत्ति पर वादी के स्वत्व का प्रत्याख्यान किया गया। तत्पश्चात वाद पत्र को संशोधित करने के लिए स्वत्व की घोषणा के लिए अनुतोष का दावा करते हुए हस्तगत प्रार्थना पत्र
आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता में वादी ने पेश किया है। प्रार्थना पत्र, जवाब, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का प्राधिकार निर्णय, पूर्व निर्णय, इनका अवलोकन करने के बाद न्यायालय की राय में जहां वाद हेतुक में परिवर्तन नहीं होता है और नए मामले को स्थापित नहीं किया गया हो, अभिवचन में संशोधन के प्रार्थना पत्र को न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए और विचारण के अनुक्रम में पक्षकार परिसीमा के वर्जन के तर्क को उठा सकते हैं। कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि हमने एप्लीकेशन भी देख ली, रिप्लाई भी देख ली, आर्ग्यूमेंट भी सुन लिए, जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का पेश किया था उसको भी अवलोकित कर लिया हमने। उसके बाद कोर्ट ने अपनी राय दी कि चूंकि जहां जो है वो वाद हेतुक में परिवर्तन नहीं होता है अभिवचन में संशोधन करने से, नया कोई मामला स्थापित नहीं होता है अभिवचन में संशोधन करने से, तो वहां कोर्ट को जो है थोड़ा लिबरल रहना चाहिए और अभिवचन में संशोधन को है स्वीकार है वो किया जाना चाहिए। और कोर्ट ने ये भी है वो फाइंडिंग दी थी कि ये आपका जो लिमिटेशन का बिंदु है आप इसको ट्रायल के दौरान दोबारा रेज कर सकते हैं, WS में लाइए इस ऑब्जेक्शन को, इशू बन जाएगा, कोर्ट उसमें ट्रायल के दौरान देख लेगा कि लिमिटेशन से वर्जित है या नहीं। यस, हस्तगत मामले में स्वत्व के घोषणा के दावे को संशोधन के जरिए शामिल करने से वाद हेतु परिवर्तित नहीं होना प्रतीत होता है और प्रस्तावित संशोधन वाद के पक्षकारों के बीच विवादग्रस्त संपत्ति के स्वामित्व के वास्तविक विवाद को अवधारित करने के लिए न्यायालय की राय में आवश्यक भी है। जो टेस्ट है 6-17 के एप्लीकेशन को जो है अलाउ करने के लिए जो 6-17 में एक्सप्रेस रूप से दे रखा है कि कब है वो कोर्ट है वो अलाउ करेगा उस एप्लीकेशन को, व्हेन अमेंडमेंट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द रियल कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। पक्षकारों के बीच जो वास्तविक विवाद के प्रश्न हैं उन प्रश्नों को अवधारित करने के लिए, उन प्रश्नों को डिसाइड करने के लिए यदि संशोधन आवश्यक है तो कोर्ट उसे एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग, कार्रवाई के किसी भी स्टेज पे जो है अभिवचन के संशोधन करने की है वो अनुमति है वो दे सकता है। इसलिए कोर्ट ने इसमें भी उस टेस्ट को भी है वो शामिल है वो किया है कि ये जो है इस पर्पज के लिए भी आवश्यक है और इस है वो संशोधन से वाद हेतु है वो परिवर्तित नहीं हो रहा है, नए मामला कोई स्थापित है वो नहीं हो रहा है। और अल्टीमेटली वादी का जो प्रार्थना पत्र है अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 उपयुक्त निष्कर्षानुसार स्वीकार किया जाता है। निष्कर्ष कौन सा, जो जस्ट पहले वाला जो पैरा उसमें जो कंक्लूजन या फाइंडिंग दे रखी है उसके बेसिस पे स्वीकार किया जाता है और वादी को निर्देशित किया जाता है कि संशोधित वाद पत्र है वो पेश करे और प्रतिवादी को भी है वो निर्देशित किया जाता है कि वो पारिणामिक संशोधन है वो पेश करे। जब वादी अपने वाद पत्र को संशोधित करके और एक नया पैरा ऐड करेगा, उसमें पहले से कोई पैरा नंबर 4 है उसमें 4A ऐड कर रहा है, तो प्रतिवादी भी उस 4A जो पैरा है उसकी रिप्लाई भी देगा अपने वो संशोधित है वो लिखित कथन के अंदर। तो ऐसी कंडीशन में जो है और ऑब्जेक्शन भी है वो ला सकता है उस पारिणामिक संशोधन में, लिमिटेशन के पॉइंट वाला जो है। तो ये प्रतिवादी को भी निर्देशित किया गया है और वादी को भी है वो डायरेक्शन दिया गया कि वो अपना संशोधित वाद पत्र कोर्ट के सामने पेश करें। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा यह आदेश आज दिनांक 100 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। ये क्या वो लाइन आएगी और उसके बाद दोबारा जो है पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और न्यायालय की मुद्रा। हाँ जी, ये आ गया ना, फिर डिफेंडेंट कह रहा है कि साहब ये 3 साल के बाद में, मीन्स WS फाइल होने से 3 साल के बाद पेश हुई है, 16 जून 2018 के बाद में ही पेश हुई है। ये ऑब्जेक्शन तो आ ही गया था रिप्लाई के अंदर, ये तो पेपर में था। हाँ हाँ जी, कोई ज़रूरी नहीं है। उसमें 2 बातें दे रखी है ऑर्डर 6 रूल 18 में। पहली बात ये दे रखी है कि कोई कोर्ट ने टाइम लिमिट या सर्टेन किया है तो सर्टेन टाइम है, और कोई सर्टेन टाइम नहीं है, लिमिट नहीं किया कोर्ट ने, कोई निश्चित नहीं किया टाइम, तो फिर विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर।
आदेश की तारीख से 14 दिन के भीतर जो है वो संशोधित वाद पत्र पेश किया जाए। और उसका भी आगे और इंटरप्रिटेशन है। सैलम एडवोकेट बार एसोसिएशन ऑफ तमिलनाडु वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2005 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये ऑर्डर 6 रूल 18 मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है। इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी प्रोविज़न, इट इज़ डायरेक्टरी प्रोविज़न। कोर्ट में एक्सेप्ट द अमेंडेड प्लान आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द 14 days और द टाइम लिमिटेड बाय द कोर्ट अंडर सेक्शन 148 CPC इन 151 CPC। हाँ जी, हो गया। आप तो मान लो कई बार सर्विस ही नहीं हुई, तामील नहीं हुई 1.5-2 साल तक, आप ये मान लो। आ गया ना WS, कोर्ट ने एक्सेप्ट कर दिया तो अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उस पर। तामील जो है, तामील में टाइम लग जाता है, कई बार जो है लंबे समय तक तामील नहीं होती है। वो जो टाइम लिमिट दे रखी है 30 days 90 days, और उसके बाद भी वो टाइम लिमिट तो तब शुरू होगी जब समन सर्व होगा। प्रैक्टिकल सेंस में देखें आप इस बात को। हाँ जी सूरज, नहीं उसमें तो वो क्यों करे, उसका ओनरशिप डिस्प्यूटेड ही नहीं था, पहले डिनाई नहीं किया था। पहले जब तक WS में डिनाइल नहीं था तो ऐसे, या डिनाइल में वो पार्टी इंटरेस्टेड नहीं, तो क्यों उस स्वामित्व की घोषणा के लिए लेके आए? वो सिंप्लिसिटर पोजीशन का सूट लेके आया, मीन प्रॉफिट था और डैमेजेस का था। सिक्सटी 65 में स्थावर संपत्ति की स्वामित्व की घोषणा का दावा था और रिमूवल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एंट्री नंबर 64 और 65 है। हेलो, क्या कह रहे हैं? एडवर्स पोजीशन के बेसिस पे मुझे ऑनर डिक्लेयर किया जाए, एंट्री नंबर 65 में ऐसा सूट आ सकता है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर जो है मुझे इस संपत्ति का जो है वो स्वामी भी घोषित किया जाए और पोजीशन भी दिलाया जाए, ऐसा एंट्री नंबर 65 में सूट आ सकता है। हाँ जी, छः 17 में 7-11 में कोई प्रार्थना पत्र संख्या नहीं आएगा। ऑर्डर 39 रूल 1 और फर्स्ट और सेकंड की यदि कोई एप्लीकेशन आती है तो उसमें एप्लीकेशन अलग से दर्ज होती है तो उसके नंबर भी आएंगे। ऑर्डर 9 रूल 13 की एप्लीकेशन है तो उसमें वो अलग से दर्ज होती है, उसलिए एप्लीकेशन के नंबर भी आएंगे। यस, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम 437 CRPC में एक एप्लीकेशन पेश हुई है, बेल एप्लीकेशन, और उसमें आपको ऑर्डर करना है। क्या फैक्ट्स है एप्लीकेशन के? एप्लीकेंट अक्यूज अरेस्टेड एट 6 PM ऑन 4th December 2018 and this bail application of the accused has been filed in respect of the CR number 259 2018 under section 498A 304B IPC, police station Bhinmal. Case diary was produced, heard the argument on application. During argument, advocate of accused requested that the applicant or accused is innocent and falsely implication. There is no probability of the applicant or accused the free from the justice or the tamper with the evidence or influence to witnesses. There is no previous conviction of the accused. There is probability of the company of the notorious criminal by committing of the judicial custody. No recovery from exclusive possession of the applicant or accused. In earlier matter under section 174
CRPC, but subsequently false case was registered against the applicant or accused. Applicant or accused is ready and willing to furnish the bail bond according to the order of the court. At the end, requested for granting the regular bail to the applicant or accused by reason of the absence of prosecution officer. Investigation officer was heard and he opposed the application. Write the bail order upon the above mentioned fact. प्रार्थी ऑब्लिक अभियुक्त को दिनांक 4 दिसंबर 2018 को शाम को 6 बजे के आसपास है वो गिरफ्तार किया गया। प्रार्थी अभियुक्त की नियमित जमानत का यह आवेदन पुलिस थाना भीनमाल के अभियोग संख्या या केस नंबर 259/2018 FIR नंबर अंतर्गत धारा 498 का 304B भारतीय दंड संहिता पुलिस थाना भीनमाल के मामले में वो प्रस्तुत हुआ। मामले की केस डायरी प्रस्तुत की गई। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थना पत्र की बहस के दौरान प्रार्थी ऑब्लिक अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है, अन्वेषण और विचारण में समय लगेगा, प्रार्थी के भागे जाने या साक्षीगण को प्रभावित करने का अंदेशा नहीं है, कोई संभावना नहीं है, प्रार्थी के विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि नहीं है, न्यायिक अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित करने से उनके छातिर बदमाश और आदतन अपराधियों के संगत में पड़ने का अंदेशा या संभावना है। अभियुक्त के चैतन्य कब्जे से कोई बरामदगी है वो नहीं हुई है। प्रकरण में पूर्व में मर्ग दर्ज किया गया था, परंतु बाद में यह झूठा मुकदमा है वो किया गया। मर्ग का मतलब 174 CRPC की कार्रवाई शुरू हुई थी, 174 CRPC की कार्रवाई है वो शुरू हुई थी और बाद में जो है ये FIR झूठा केस जो है वो उसके खिलाफ दर्ज किया गया। वह आदेश के अनुसार कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा इस बेल एप्लीकेशन में, उस आदेश के अनुसार जमानत मुचलका प्रस्तुत करने के लिए तत्पर और तैयार है और अंत में प्रार्थी को नियमित जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई। अभियोजन अधिकारी के अनुपस्थित होने के कारण मामले का जो अनुसंधान करता या अन्वेषण अधिकारी था उसको बेल एप्लीकेशन में जो है अपोज करने के लिए है वो सुना गया और अन्वेषण अधिकारी ने प्रार्थना पत्र का जो है वो विरोध किया। विरोध किया मीन्स खारिज करने का है वो रिक्वेस्ट किया कि इसे बेल है वो नहीं दी जाए या वो सीरियस ऑफेंसेज में चार्जेज है इसके अगेंस्ट। उपयुक्त तथ्यों पर जमानत आदेश लिखे। In the court of Additional Chief Judicial Magistrate भीनमाल डिस्ट्रिक्ट जालोर में ही है क्या अभी या चेंज हो गया? In the court of Additional Chief Judicial Magistrate भीनमाल डिस्ट्रिक्ट जालोर प्रिजाइडिंग ऑफिसर P डेजिग्नेशन RJS FIR नंबर 259/2018 अंडर सेक्शन 498A 304B IPC एप्लीकेंट ऑब्लिक अक्यूज जितेंद्र कुमार सन ऑफ अमरा राम एज 20। ये उसमें तो नहीं आया था प्रॉब्लम में जितेंद्र कुमार, ये भी कोई रियल केस है। जितेंद्र कुमार वर्सेस अमरा राम एज सो एंड सो रेजिडेंट ऑफ दांतीदास पुलिस स्टेशन भीनमाल जालोर वर्सेस नॉन एप्लीकेंट ऑब्लिक prosecution means the state of Rajasthan through the prosecution officer or investigation officer. Application under section 437 criminal procedure code presents Sri so and so learned advocate for the applicant or accused and Sri so and so learned prosecution officer for the state. Prosecution officer for the state, then order and this side the date. Para number first. Applicant accused arrested at 6 PM on 4th December 2018। ये सारी कहानी वही है जो हमने पहले प्रॉब्लम में पढ़ी है। Yes, para number second. After considering the argument of the advocate of applicant accused and perusal of available material on the record that the accused Jitendra Kumar harassed his wife Hina for demand of dowry and by result of this cruelty she died in other than normal circumstances and which appears from the investigation and which is considered the dowry death
in investigation. In the furtherance of investigation, investigation officer arrested to the accused under section 498A and 304B of the Indian Penal Code, and after required the investigation produced before the court and authorized to the police and judicial custody. Para number 3, perusal of the file that the allegation against the accused under section 498A and 304B IPC which corroborated by the FIR, statement of complainant and other witnesses before the police under section 161 CRPC and 164 CRPC. Offence under section 304B is exclusively triable by the session court. Offence under section 30B IPC is exclusively triable by the session court or court of session and shall be punishable with not less than 7-year imprisonment, which may extend to the imprisonment for life. In offence punishable with imprisonment for life, no benefit of the bail can be granted except the applicant is under 16 years of the age, women, sick or infirm. In hand case, the applicant or accused is not fall under the exceptional categories. By granting bail in such a cases against the jurisprudential concept of the justice, law and punishment, consequently in hand case at this stage, in the view of the seriousness of the offence and facts and circumstances of the case, it is not appears justified to granting the regular bail to the applicant or accused without making any comment on the merit of the case or involvement of the other accused in case. Next one, the application under section 437 of Criminal Procedure Code made by the applicant or accused in respect of the CR number, criminal case number 259/2018, offence under section 498A and 304B IPC was dismissed, and the copy of the order shall be furnished the free of cost to the applicant or accused forthwith, then signature of the presiding officer and seal of the court. This bail order is pronounced today in open court and again signature of the presiding officer and seal of the court. Offence punishable under section 304B IPC, dowry death, which is exclusively triable by the court of session, and so serious offence, magistrate generally has no power under section 437 of CRPC to grant the bail in such cases. Even the session court itself not granting the bail during the trial of that offence under section 304B in practical sense, and the accused is not fall under the any exceptional cases which given under the proviso first and second of the subsection first of section 437 in case of women under the 16 years of the age, sick man or suffered from the infirmity etc. Therefore, the application is rejected by the magistrate to granting the bail under section 437 CRPC. हिंदी में देखेंगे आप, कैसे लिखेंगे हम जो है इस ऑर्डर को। न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट, प्रॉब्लम केवल इंग्लिश में ही थी क्या? अच्छा, हिंदी में भी था ना। न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट भीनमाल न्याय क्षेत्र जिला जालोट, पीठासीन अधिकारी पी, प्रतीकात्मक नाम पदनाम आरजेएस। प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 259/2018 अंतर्गत धारा 498 क 304 क भारतीय दंड संहिता, पुलिस थाना भीनमाल। देन जितेंद्र कुमार पुत्र अमराराम, उम्र 20 वर्ष, निवासी दांतीवास, पुलिस थाना भीनमाल जालोर, प्रार्थी ऑब्लिक अभियुक्त बनाम राजस्थान राज्य जरिए सहायक लोक अभियोजक ऑब्लिक अनुसंधानकर्ता भीनमाल अभियोगी। प्रार्थना पत्र बाबत नियमित जमानत अंतर्गत धारा 437 दंड प्रक्रिया संहिता।
उपस्थिति। श्री सो एंड सो विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी और अभियुक्त की ओर से या वास्ते प्रार्थी और अभियुक्त, और श्री विद्वान अभियोजन अधिकारी अभियोजन की ओर से, अभियोजन अधिकारी या अनुसंधान अधिकारी या अन्वेषण अधिकारी, क्योंकि इसमें प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जो थे वो तो एब्सेंट बताए गए थे शायद प्रॉब्लम में, तो ऑब्लिक अन्वेषण अधिकारी कर लें आप इसमें, विद्वान अभियोजन अधिकारी ऑब्लिक अन्वेषण अधिकारी। देन आदेश, इस तरफ दिनांक, पैरा नंबर फर्स्ट, प्रार्थी अभियुक्त को दिनांक इतनी इतनी को इतने बजे है वो गिरफ्तार किया गया। इस क्रिमिनल केस के अंदर उसने नियमित जमानत प्रार्थना पत्र जो है एसीजेएम भीनमाल में वो पेश किया या भीनमाल के मैजिस्ट्रेट के समक्ष है वो पेश किया गया। ये सारी कहानी हमने प्रॉब्लम में पढ़ ली है, और ये उसने अल्टीमेटली जो है कंसर्न एडवोकेट या एप्लीकेंट ने ये प्रार्थना की कि नियमित जमानत पर उसको रिहा किया जाए। अभियोजन अधिकारी की अनुपस्थित होने के कारण मामले के अनुसंधानकर्ता को सुना गया और अनुसंधानकर्ता ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया। यहाँ तक तो प्रॉब्लम ने दे रखा था। नेक्स्ट, यहाँ से कोर्ट का रोल है वो स्टार्ट होगा। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर विचार कर मामले की पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने से यह दृष्टिगत है कि अभियुक्त जितेंद्र कुमार द्वारा अपनी पत्नी हीना को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित है वो किया गया, और इसी क्रूरता के परिणाम स्वरूप हीना की मृत्यु साधारण परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में हुई। अनुसंधान में दहेज मृत्यु है वो मानी गई। अनुसंधान के क्रम में अनुसंधानकर्ता ने अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 498 का 304 का भारतीय दंड संहिता का अपराध मानकर उसे गिरफ्तार किया और उससे आवश्यक अपेक्षित अनुसंधान करने के पश्चात उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, और जिस पर उसको पुलिस और न्यायिक अभिरक्षा में प्रति प्रेषित है वो किया गया। नेक्स्ट पैरा, पत्रावली के अवलोकन से पाया कि प्रार्थी पर धारा 498 का 304 का भारतीय दंड संहिता का अभियोग है, और जिसकी पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट, परिवादी और गवाह के पुलिस बयानों में वो की गई है। धारा 304 का भारतीय दंड संहिता का अपराध माननीय सत्र न्यायालय के द्वारा जो है या सेशन न्यायालय के द्वारा विचारणीय, और इसमें 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। आजीवन कारावास की सजा के मामले में 16 वर्ष से कम आयु के बालक, स्त्री, रोगी या शिथिलांग को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को धारा 437 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। इस प्रकरण में अभियुक्त उक्त अपवादिक श्रेणी में नहीं आता है। ऐसे प्रकरणों में जमानत का लाभ दिए जाने से विधि और दंड के निवारक भय में कमी आती है तथा विधिक व्यवस्था और आपराधिक न्याय प्रशासन के प्रति वो जनमानस में प्रतिकूल विश्वास है वो उत्पन्न होता है, जबकि न्याय, विधि और दंड जैसी सकल विधि शास्त्रीय संकल्पनाओं का मूल प्रयोजन समाज का स्थापित व्यवस्था के प्रति विश्वास बनाए रखना होता है। फलतः परिणामतः हस्तगत मामले में इस प्रकरण पर अपराध की गंभीरता और पुलिस द्वारा संकलित साक्ष्य सामग्री सहित प्रकरण के समस्त तथ्य और परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अन्य अभियुक्तगण की संलिप्तता या अन्य किसी गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थी को नियमित जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। नेक्स्ट और लास्ट पैरा जो है, प्रार्थी ऑब्लिक अभियुक्त जितेंद्र कुमार की ओर से पुलिस थाना भीनमाल के अभियोग संख्या 100 के अंतर्गत धारा 498 का 304 का भारतीय दंड संहिता के मामले में नियमित जमानत हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 437 दंड प्रक्रिया संहिता एतद द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है, और आदेश की एक प्रति अविलंब अभियुक्त ऑब्लिक उसके अधिवक्ता को निःशुल्क वो उपलब्ध करवाई जाए। इस निष्कर्ष के साथ, इस फाइंडिंग के साथ इस बेल एप्लीकेशन को जो है वो खारिज किया गया। उसके बाद पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा, और लास्ट जो है इसमें नंबरिंग नहीं आएगी, विदाउट नंबरिंग ये मेंशन होगा। आदेश आज दिनांक सो एंड सो को लिखवाया जाकर, ये ऑर्डर भी इसी तारीख को है वो हुआ था प्रैक्टिकल फाइल में, सो एंड सो तारीख को लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर और मुद्रा विवर्त न्यायालय में, विवर्त की जगह हम खुले भी लिख सकते हैं, खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया या सुनाया गया, सुनाया है वो गया।
और देन पीठासीन अधिकारी के पुनः हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। मुद्दे की बात काफ़ी लंबा था ऑर्डर, इतनी बातें न तो आपको ये जुरिस्प्रूडेंशियल कंसेप्ट और जनमानस में आस्था वगैरह याद आएगी। जो लॉजिक क्या है इस एप्लीकेशन को खारिज करने का, उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि ऑफेंस सीरियस है, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइबल है, 437 की उपधारा 1 में सामान्यतः मृत्युदंड और आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध में मजिस्ट्रेट के पास जमानत देने की शक्ति नहीं है, और जो परंतुक में अपवाद में जो लोग दे रखे हैं उस श्रेणी का ये अभियुक्त या आवेदक नहीं है। इसलिए अपराध की गंभीरता के वो आधार पर इस स्टेज पर ये नियमित जमानत प्रार्थना पत्र है अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। इस फाइंडिंग के साथ आपको है वो कंक्लूड करना है। जो भी ये भाई साहब थे मजिस्ट्रेट साहब, इन्होंने काफ़ी टिपिकल हिंदी है वो यूज की है इससे वो ऑर्डर के अंदर जो है, तो उतनी टिपिकल हिंदी और उतनी टिपिकल इंग्लिश भी हमें याद नहीं आएगी। अपने को 437 के सबसेक्शन 1 से कनेक्ट करना है कि सीरियस ऑफेंस में प्रेस्क्राइब पनिशमेंट इसके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और सामान्यतः जहां डेथ और एलआई से पनिशेबल ऑफेंस है उसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास है वो जमानत देने की शक्ति है वो नहीं है। ऑफेंस बन रहा है, जब ऑफेंस नहीं बन रहा हो तो मजिस्ट्रेट एक्सेप्शनली दे भी सकता है। केवल उन सेक्शंस में एलिगेशन होने से मजिस्ट्रेट की पावर समाप्त नहीं हुई है। जो केस डायरी कॉल की गई, यदि उससे ऑफेंस बनने के एविडेंस कलेक्ट हुई है, जो 161 के स्टेटमेंट और जो डॉक्यूमेंट जो है वो रिकॉर्ड पे लिए गए इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उससे तब तो खारिज किया जाएगा। यदि ऑफेंस बनता ही नहीं है प्राइमा फेसी, तो मजिस्ट्रेट एक्सेप्शनली जमानत दे भी सकता है, चाहे भले डेथ से पनिशेबल कोई ऑफेंस है और एलआई से पनिशेबल ऑफेंस है, बट देनी नहीं है। यदि बन भी जाओ तो खारिज करना ही हमारे लिए है वो अच्छा है, क्योंकि जो लीक है उससे हटके काम करोगे तो कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है वो ओपन हो सकती है कि साहब इसने पैसे लिए हैं इस मामले में जमानत देने के। सेशन ट्राइबल केस में सामान्यतः मजिस्ट्रेट जमानत है वो नहीं देता है, और जो प्रोहिबिटेड है इससे हटके दिया है, ऐसा हुआ भी है। किसी का नाम मैं वो नहीं लूँगा मैं, बट मुझे जानकारी में है कि इस तरीके का हटके किसी ने काम किया है, तो या तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा या जैसलमेर, बाड़मेर फेंका गया उनको, या धौलपुर के उस लास्ट है वो किनारे पे, या फिर उनके खिलाफ कोई विभागीय जांच है वो स्टार्ट हुई है। तो इसलिए जैसी न्यायपालिका का जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड से ही काम करना है मजिस्ट्रेट बनने के बाद। हाँ, समस्या को देख के हमें पता लगा कि ये सेशन में आएगी। हाँ, हमने पहले ही कोर्ट सेशन डाल दिया। क्यों डाल दिया? आपको पता है कि इन्वेस्टिगेशन होने के बाद चार्जशीट भी मजिस्ट्रेट कोर्ट में आएगी, फॉर्मल ऑर्डर कॉग्निजेंस का भी है वो मजिस्ट्रेट का होगा। उसके बाद 209 में 207, 208 की कंप्लाइंस होने के बाद जो है वो सेशन कोर्ट में केस कमिट होगा। ये तो बहुत इनिशियल स्टेज पे है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एप्लीकेशन आई है। सर जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ था जैसे केस डायरी आई, यानी अगर चालान का नाम होता तो सेशन में 439 करते हैं। चालान भी आ गया तो उसके बाद भी मजिस्ट्रेट की पावर खत्म नहीं हुई जब तक केस कमिट नहीं हो जाता है। हालांकि जो ही आपने रिजेक्ट कर दिया मजिस्ट्रेट कोर्ट ने, तो सेशन में चली जाएगी उस ऑर्डर के खिलाफ। उस ऑर्डर के खिलाफ जो है, रिजेक्शन ऑर्डर के खिलाफ 439 में बेल एप्लीकेशन सेशन कोर्ट में लग जाएगी, बट वो सेकंड बेल एप्लीकेशन होगी। आप डायरेक्ट जो है ओरिजिनल बेल एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन में नहीं लगा सकते इस केस में। सर जैसे मतलब कंडीशन ऐसी थी कि मेरे को लगा कि जैसे सेशन ट्राइबल है, चालान पे तो, और तब मैंने ये भी लिखा हुआ आ जाए कि केस कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट भी कर दिया गया, तो देन आप लिख सकते हैं कोर्ट ऑफ और सेशन। वहाँ मैंने सर ये जमानत स्वीकार कर दी सर, जमानत स्वीकार की जाती है, मुद्रण की तस्दीक लीजक आपको उसके लॉजिक देना पड़ेगा, रीजन देनी पड़ेगी क्यों स्वीकार किया आपने सेशन ट्राइबल केस में। इससे अच्छा एक्सक्लूसिव सेशन ट्राइबल केस में आपने जमानत क्यों दी है, ऐसा क्या था, क्या लकुना था इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है, या केस बन नहीं रहा था आदि है वो उसके खिलाफ जो कुछ भी सामग्री केस डायरी पर या इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो कलेक्ट हुई थी उससे, तो उसके रीजन देने पड़ेंगे आपको। इवन वो कोर्ट नहीं देता है जिसके पास ट्रायल की शक्ति है। 304B में तो अंदर ही सड़ते हैं लगभग है वो ट्रायल कंक्लूड होने तक। स्पेशल लॉ में नहीं हो, आईपीसी के सारे अपराध जो सेशन ट्राइबल है उसमें पहली बेल एप्लीकेशन जो है अरेस्ट के बाद मैजिस्ट्रेट कोर्ट में आएगी, वहाँ से रिजेक्ट होने के बाद सेकंड बेल एप्लीकेशन 439 में कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी। सेशन कोर्ट भी खारिज कर देता है तो उससे अगली बेल एप्लीकेशन 439 में हाई कोर्ट में जाएगी।
पोक्सो में कोई ऑफेंस है, SC/ST एक्ट में कोई ऑफेंस है, NDPS एक्ट के अंतर्गत कोई ऑफेंस है, डायरेक्ट बेल एप्लीकेशन स्पेशल कोर्ट में जाएगी, NDPS कोर्ट में जाएगी, पोक्सो कोर्ट में जाएगी, SC/ST कोर्ट में जाएगी। और SC/ST में कुछ स्पेसिफिक प्रोविज़न भी है कि यदि आपने बेल ग्रांट कर दी या रिजेक्ट कर दी तो उसके खिलाफ अपील है। क्या है? 439 नहीं है, अपील है। ऐसा मुझे सेक्शन नंबर तो अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, 14B 14A या 14B, एक नया अमेंडमेंट से सेक्शन ऐड हुआ है, उसमें ये बेल जो ऑर्डर है SC/ST एक्ट में, चाहे बेल ग्रांट की गई हो या रिजेक्ट की गई है, दोनों ऑर्डर अपीलेबल है, अपील लाई करेगी हाई कोर्ट में। सर अगर जुवेनाइल से जस्ट हो तो फिर विशेष न्यायालय में जाएंगे बेल? हाँ, JJ एक्ट के प्रोविज़न लागू हो जाएंगे। JJ बोर्ड के सामने बेल एप्लीकेशन पेश की गई, रिजेक्ट हो गई है, तो उस कंडीशन में चिल्ड्रन कोर्ट जो है, बालक न्यायालय जो है 220 JJ एक्ट में जो परिभाषित है वहाँ जाएगी। हाँ जी, सेशन नहीं, चिल्ड्रंस कोर्ट। चिल्ड्रन कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया है तो हाई कोर्ट में भी एक्सेप्शनली जा सकती है, और यदि अपील नहीं होती है तो रिवीजन या अन्यथा कोई और कोई 482 कोई है वो रेमेडी है वो हो सकती है उस केस में। अच्छा, ये कहाँ से पढ़ के आए आप? मैंने तो ये पढ़ा है कि चिल्ड्रन कोर्ट की पावर जो है पोक्सो का स्पेशल कोर्ट है उसको दे रखी है, और वो स्पेशल कोर्ट वो अलग है कोर्ट ऑफ सेशन से। जो ऑर्डिनरी आपका कोर्ट ऑफ सेशन है उससे अलग है, वो इस्टेब्लिश है हर डिस्ट्रिक्ट में। सेशन कोर्ट को एक अपील होगी, सेक्शन 15 के सब सेक्शन 2 का जो ऑर्डर है, 2 या फर्स्ट प्रिलिमिनरी असेसमेंट का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट कोर्ट ऑफ सेशन में अपील जाएगी। ये दो माइक किन किन के चालू है? एक रिमझिम और एक रूपाली। क्या कह रहे हैं रिमझिम, आप बताओ। हाँ जी, ऑर्डर पूछ सकते हैं एक्सेप्शनली। सिविल के ऑर्डर तो पूछे भी है, सिविल के ऑर्डर तो अभी पिछले बार में ही पूछ लिया था, रेंट कंट्रोल से है वो ऑर्डर। क्रिमिनल में लिखा हुआ तो नहीं है, बट ये ऑर्डर भी वो जजमेंट जैसा ही प्रभाव रखता है। जजमेंट राइटिंग तो है ना आपका, तो बेल एप्लीकेशन में जजमेंट की जगह ऑर्डर आता है, पूछा जा सकता है आपसे। JJ एक्ट पढ़ लेना भैया इसके लिए, भैया या कौन रूपाली जो भी है, JJ एक्ट की स्टडी करनी पड़ेगी, वो इसके बारे में स्पेशल लॉ है। 101 जो सेक्शन है JJ एक्ट का, उसको है वो सब सेक्शन 1 से लेके और 8 तक, 8 है ना लास्ट सब सेक्शन, नहीं 2021 के अमेंडमेंट से शायद 8 हो गए मेरे के। हाँ, तो जो सब सेक्शन 1 से लेके और 8 तक आप स्टडी कर लेना, सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। अब हम अगली प्रॉब्लम पे आएंगे। चिल्ड्रंस कोर्ट, क्योंकि सेशन कोर्ट को तो केवल एक अपील जाएगी। 15 के अंदर जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट का ऑर्डर हुआ है, केवल उस ऑर्डर की अपील कोर्ट ऑफ सेशन को है। अदरवाइज जो अपील जो है वो चिल्ड्रंस कोर्ट को है। और कुछ केसेस में जो है एक्विटल वगैरह से अपील को रिस्ट्रिक्ट भी कर रखा है कि नहीं होगी। पेटी ऑफेंस, सीरियस ऑफेंस एटसेट्रा के अंदर यदि एक्विटल का ऑर्डर है, नो अपील लाई। हाँ जी, पोक्सो कोर्ट में क्या होगा? क्यों पोक्सो के स्पेशल कोर्ट को क्यों नहीं? नहीं, स्पेशल कोर्ट ऑफ पोक्सो कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 28 ऑफ दैट एक्ट।
लिखना पड़ेगा आपको विशेष न्यायालय पोक्सो, स्पेशल कोर्ट पोक्सो और प्लेस जो भी है, जिस डिस्ट्रिक्ट का वो कोर्ट है वो लिखना पड़ेगा आपको सबसे ऊपर। यस, वन मोर। हाँ जी, अब क्या देख के करना है? बेल एप्लीकेशन में हम एलिमेंट एक तो अपराध की गंभीरता को देखेंगे, अपराध कौन से कोर्ट के द्वारा ट्राइबल है, ये है वो मुख्य बात है, वो देखी जाती। फिर इन्वेस्टिगेशन में क्या आया है उसके खिलाफ, ये देखेंगे। उस यदि एक सेशन ट्राइबल केस हो तो रिजेक्शन ऑर्डर इज द बेस्ट ऑर्डर। क्या कह रहे हैं आप? सेशन न्यायालय यदि बेल एप्लीकेशन स्वीकार कर रहा है, हाँ तो लिख सकते हैं, उसमें बहुत सारी बातें आ सकती है। विटनेसेस को टेम्पर विद करने की संभावना नहीं है, इसका खुद का फ्ली फ्रॉम द जस्टिस, न्याय से भागने की संभावना नहीं है, मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी इसकी कोर्ट के जुडिक्शन में है, अपराध जो है वो जो ट्राइबल है ये इस कोर्ट के जुडिक्शन के अंदर है, और वो जमानत दिया जाना जो है वो उचित प्रतीत होता है। इस तरीके की बातें लिख के दी जा सकती है। इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। वो तो देखेंगे ही, जो क्या आया है केस डायरी के अंदर ये तो देखा ही जाएगा। अपराध बन रहा है उसके बावजूद भी सेशन कोर्ट जो है वो सुपीरियर कोर्ट है, मजिस्ट्रेट से जो है वो सेशन कोर्ट की पावर वाइडर है। जिस है वो ऑफेंस के अंदर मजिस्ट्रेट है वो नहीं दे सकता, सेशन कोर्ट उसमें दे सकता है। वो रेस्ट्रिक्शन जो लगे हुए हैं डेथ और एलआई के, वो केवल मजिस्ट्रेट के लिए लगे हुए हैं, सेशन कोर्ट के लिए वो रेस्ट्रिक्शन है वो नहीं है। 439 में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं कर रखा है। वो डेथ पनिशेबल, एलआई से पनिशेबल है वो कोई भी जो अपराध है उसके अंदर है वो जमानत है वो दे सकता है सेशन कोर्ट। दे या न दे ये उसका जुडिशियल डिस्क्रेशन है। नहीं, जरूरी नहीं है। ये तो भीनमाल का केस था, वहाँ जो है वो जेम फर्स्ट क्लास का कोर्ट ही नहीं है, एसी जेम का कोर्ट ही है। या ये जो पुलिस स्टेशन जिसमें ये ऑफेंस हुआ था उसका जुडिक्शन एसी जेम के पास था, तो इसमें आप जेम फर्स्ट क्लास लिख सकते हैं। आपको ये पता रखना है कि सेशन कोर्ट वाला वो सेक्शन नहीं होना है, वो चाहिए, या उसमें पेपर में आ जाएगा, उसमें दे दिया जाएगा कि एसएजेएम का कोर्ट है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का कोर्ट है। और नहीं हो तो बेल एप्लीकेशन 437 की है तो मजिस्ट्रेट के पास है, तो जो आप लिखोगे वो सही हो जाएगा। सीजीएम लिखोगे तो भी सही हो जाएगा, एसीजीएम लिखोगे तो भी सही मान लिया जाएगा, और जेम फर्स्ट क्लास लिखोगे तो भी सही मान लिया जाएगा। आपको बेल एप्लीकेशन में सब देना पड़ेगा। एफआईआर नंबर क्या है, किस पुलिस स्टेशन से कंसर्न है, ये कौन से सेक्शंस में एफआईआर लॉन्च हुई है, ये सब पर्टिकुलर्स आपको बेल एप्लीकेशन में देने होंगे। अब इसके लिए रूपाली अब क्लास के बाद बात करना आप, है ना, टाइम जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। आप मेरे से कॉल पे बात करना क्लास के बाद। In the court of civil judge, presiding officer name X or designation RJS, original civil suit number /2005 CNR number 2005 A versus B, application under order 9 rule 7 CPC. Presents Sri M learned advocate for applicant / defendant and Sri N learned advocate for non-applicant / plaintiff. Order IX is the symbolic name of judicial officer. Civil judge shall dispose of above mentioned application in following manner. Order 9 rule 7 means there is order of the ex parte hearing against the defendant, and defendant is interested to set aside the such order.
An application under Order 9 Rule 7 CPC filed by the defendant, and brief facts of this application are as under that he could not appear on the 21st July 2005 due to the marriage in the family, and his counsel was busy in the another courts, hence the counsel also could not appear, and prayed to allow him to cross examine the plaintiff by setting aside the ex parte order passed against him. Plaintiff submitted the reply of this application and rebutted all the facts raised in the application and contended that above application was presented with an intention to delay the case and ultimately prayed for the dismissal of this application. Arguments were heard from the both sides, and the both parties repeated the arguments of the application and its reply. During the argument, defendant requested that he could not appear on 21st July 2005 due to the marriage in the family, and his counsel was busy in the other courts, hence in the counsel also could not appear. Defendant produced the photographs, albums, video and CD of the marriage, compact discs of the marriage. The cause shown by the defendant for non-appearance on the last date of the hearing is good cause for the non-appearance of the defendant in the opinion of the court. By the procedural technicality, the right of the parties should not be affected, should not be extinguished, and with due diligence the defendant filed the application for setting aside the ex parte hearing order on 11th August 2005. Therefore, it seems justified to allow the defendant to participate in the proceedings. In the opinion of the court, the reason, the cause which is shown by the defendant or applicant is engaged in the marriage ceremony in the family and also produce the photograph, album, video and the compact disc of the marriage upon that date, and his lawyer or advocate is engaged in the another courts, and he also could not appear before the court, and therefore the ex parte hearing order has been passed by the court to exercise the power conferred under Order 9 Rule 6 Clause A of the CPC, and the cause of the absent on last date of hearing is a good cause in the opinion of the court, and therefore the court ultimately allow the application of the defendant and directed to the defendant to participate in the proceeding further. Consequently, the application of defendant under Order 9 Rule 7 CPC is admitted and set aside the ex parte hearing order dated 21st July 2005 at 1000 rupees cost, and permitted to defendant participate in the proceeding and cross examination to the plaintiff. Signature of the presiding officer and seal of the court, and order has pronounced in open court at date here today at date so and so. Again signature of the presiding officer and seal of the court. आदेश 9 नियम 7 का एक प्रार्थना पत्र प्रतिवादी ने पेश किया है। किस बाबत? प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय सुनवाई का आदेश हो गया। सीपीसी के आदेश 9 नियम 6 के खंड क के अंतर्गत जब वाद की सुनवाई की तारीख पर वादी उपस्थित था और प्रतिवादी अनुपस्थित था, और उस अनुपस्थिति के कारण जो है और प्रतिवादी पर सम्यक रूप से है वो समन की तामील भी थी, कोर्ट ने एक पक्षीय सुनवाई का है वो आदेश कर दिया। उस एक पक्षीय सुनवाई के आदेश को प्रतिवादी क्या करवाना चाहता है? अपास्त करवाना चाहता है। एक प्रार्थना पत्र कोर्ट के सामने लेके आता है आदेश 9 नियम 7 सीपीसी का कि मैं पिछली तारीख पर अनुपस्थित जो रहा वो अनुपस्थिति का अच्छा कारण, क्या वर्ड यूज लिया गया ऑर्डर 9 रूल 7 में? गुड कॉज, अच्छा हेतुक। अच्छा हेतुक या अच्छा कारण है उसका जो है वो अनुपस्थित रहने का, और वो अच्छा हेतुक या अच्छा कारण क्या बताया उसने? विवाह होना, परिवार में किसी की शादी थी, इस कारण से वो उस तारीख पर उपस्थित नहीं हो पाया, और शादी के फोटोग्राफ भी पेश कर रहा है, एल्बम भी पेश कर रहा है, सीडी भी है वो पेश कर रहा है, पूरी मैरिज सेरेमनी की जो है वो बनी है उसको, और कोर्ट से प्रेयर कर रहा है कि साहब है वो ये एक पक्षीय आदेश अपास्त किया जाए और उसे उस है वो कार्रवाई के अंदर भाग लेने की या पार्टिसिपेट करने की अनुमति दी जाए। कैसे लिखेंगे हम इस प्रकार की है वो एप्लीकेशन में ऑर्डर? सबसे पहले आपको कोर्ट का नाम लिखना होगा, न्यायालय सिविल न्यायाधीश सो एंड सो, पीठासीन अधिकारी
जो कुछ भी आप जो है वो सिंबॉलिक नाम देना चाहे वो मेंशन हो जाएगा, और पदनाम जो है वो आरजेएस। अंतर्गत दीवानी मूलवाद संख्या या सिविल मूलवाद संख्या, और उसका वर्ष कौन सा वर्ष था? ये तो केवल इसमें वो रिजेक्शन की है वो डेट ही दे रखी है, या एक्सपार्टे ऑर्डर की डेट दे रखी। तो खैर प्रॉब्लम में यदि दे रखा हो तो आप नोट कर सकते हैं उसके सिविल सूट नंबर और ईयर भी, और इसके CNR जो नंबर है वो भी है वो नोट कर सकते हैं आप। देन वादी और प्रतिवादी के जो है वो पर्टिकुलर्स, इसमें चूंकि एप्लीकेशन प्रतिवादी पेश कर रहा है तो आप प्रतिवादी का पहले हवाला देने की जरूरत नहीं है, जो ओरिजिनल सूट में पार्टीज है उसी नाम से या वो पर्टिकुलर्स आएंगे इसमें। वादी और उसका या वो एज, उसका पिता का नाम और उसका निवास बनाम प्रतिवादी के वो पर्टिकुलर आ जाएंगे। फिर प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 7 CPC ये आएगा, और उसके बाद उपस्थिति मेंशन कर भी सकते हो और न भी करो तो नीचे भी कर सकते हो आप। पहली लाइन के बाद जो है ये जो आएगा इसके बाद भी उपस्थिति बता सकते हो कि वादी की तरफ से ये उपस्थित और प्रतिवादी की तरफ से, क्योंकि ये सामान्यतः जजमेंट के अंदर आता है। जजमेंट जो है उसके अंदर इस तरीके की उपस्थिति है वो मेंशन है वो होती है। सामान्य जो ऑर्डर है सिविल के उसमें उपस्थिति मेंशन, उपस्थिति जो है इस फर्स्ट पॉइंट के बाद है वो मेंशन है वो होती है। और यदि ऐसा कर भी दिया तो इससे नंबर कोई कटेंगे नहीं न बढ़ेंगे। इसके बाद आदेश लिखा जाएगा सेंटर में, इस तरफ नीचे एक लाइन नीचे की तरफ डेट आ जाएगी उसकी, फिर एक स्टेटमेंट आएगा, मैं अब पीठासीन अधिकारी का नाम और उसका डेजिग्नेशन। उपयुक्त वर्णित प्रार्थना पत्र को निम्न प्रकार से निस्तारित है वो करता हूं। किस तरीके से निस्तारित कर रहा है? पहला जो पैरा है, प्रतिवादी के ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का आदेश 9 नियम 7 CPC पेश किया गया, और जिसके संक्षिप्त में तथ्य क्या है? दिनांक 21 जुलाई 2005 को परिवार में शादी होने के कारण परिवादी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। उसके अधिवक्ता अन्य न्यायालय में व्यस्त थे, अतः वो भी उपस्थित नहीं हो सके, और स्वयं के विरुद्ध पारित एक पक्षीय कार्रवाई के आदेश को अपास्त कर वादी से प्रति परीक्षा का अवसर है वो प्रदान करने की प्रार्थना है वो की गई। उक्त प्रार्थना पत्र का वादी ने जवाब पेश कर सभी तथ्यों का खंडन किया और प्रकरण को या मामले को जो है विलंबित करने के आशय से उक्त आवेदन पत्र पेश किया गया है और प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने की प्रार्थना की। उभय पक्ष की बहस सुनी गई इस एप्लीकेशन में। जब भी कोई एप्लीकेशन सिविल में आती है, ऑपोजिट पार्टी को एप्लीकेशन की कॉपी के साथ नोटिस जाता है, ऑपोजिट पार्टी उसकी रिप्लाई है वो फाइल करती है, और रिप्लाई फाइल करने के बाद दोनों को जो है वो आर्ग्यूमेंट का अवसर दिया जाता है, बहस होती है उस पर। उभय पक्ष की बहस है वो सुनी गई, जिसमें उभय पक्ष के अधिवक्ताओं ने प्रार्थना पत्र और जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रतिवादी दिनांक 21 जुलाई 2005 को उसके परिवार में शादी होने के कारण उपस्थित नहीं हो सका, और उसके अधिवक्ता भी अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण उपस्थित नहीं हो सके। प्रतिवादी ने शादी के फोटोग्राफ, एल्बम, वीडियो, CD आदि भी पेश किए। न्यायालय की राय में प्रतिवादी द्वारा दर्शित कारण प्रतिवादी की पिछली सुनवाई की तारीख पर अनुपस्थिति का अच्छा हेतु का वो दर्शित होता है। प्रक्रियात्मक प्रावधानों के कारण पक्षकारों के अधिकार प्रभावित नहीं होने हैं वो चाहिए, और प्रतिवादी द्वारा आगामी तारीख पेशी 11/8/2005 को यह प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया था, जो सम्यक तत्परता से वो पेश किया जाना है वो प्रतीत होता है। मीन्स कोई डिले भी नहीं था वो एप्लीकेशन पेश करने में। लास्ट हियरिंग पे ऑर्डर हुआ, अगली जो तारीख थी उस तारीख पर ये 9/7 की एप्लीकेशन उसने पेश कर दी, इसलिए प्रतिवादी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, जस्टिफाइड लग रहा है कोर्ट को। और फलतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 7 CPC को स्वीकार किया जाकर उसके विरुद्ध पारित एक पक्षीय सुनवाई के आदेश दिनांक 21 जुलाई 2005 को 1000 रुपये के खर्चे पर अपास्त किया जाता है। 1000 की कॉस्ट पर जो है, कॉस्ट की एक कंडीशन है वो लगाई है उसके ऊपर, 1000 रुपये खर्चा का संदाय करे, इस शर्त पर जो है एक पक्षीय सुनवाई के आदेश को अपास्त किया गया। और प्रतिवादी को इस कार्रवाई में भाग लेने के लिए और वादी की प्रति परीक्षा करने के लिए अनुज्ञात है वो किया जाता है। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा आ जाएगी। यह आदेश आज दिनांक सो एंड सो को लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर और मुद्रा खुले न्यायालय में सुनाया गया। पीठासीन अधिकारी के दोबारा हस्ताक्षर आ जाएंगे और न्यायालय की मुद्रा आ जाएगी। आज के लिए मैं समझता हूँ इतना ही पर्याप्त है आप लोगों के लिए। एक आध और था, सेक्शन 11 CPC की एक एप्लीकेशन थी।